every night are we paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what. Hello everyone. So I'm in my third year of college and currently अभी just मैंने एक कैफे स्टार्ट करा है, right? And मैंने वो कैफे अंडर अ बजट ऑफ 1 लाख स्टार्ट करा है and also in just 7 दिन में मैंने कैफे का आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन किया है, which is थोड़ा क्विक, right? बट इसके अलावा इफ यू वांट टू नो थोड़ा बहुत मेरे बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ दूं तो यार आई एम नॉट समथिंग जो कि बहुत कुछ लाइफ में किया है. आई एम वेरी स्केयर्ड एंड अ फट्टू बंदा जिसको बहुत डर लगता है फ्यूचर से क्या होगा. सो ही ट्राइज each and everything he can get his hands on. So yeah, this is basic introduction of me. So मैंने क्या क्या किया है. So when college started, I started making good connection, genuine connection through college clubs and committees, and within a span of 1.5 years, मैं almost 7 से 8 committee का head बन गया in the domain of sponsorship and PR, right? And इसके and almost बहुत सारे society का मैं core member ही बन गया. The 4 or 5 people that is leading the entire society, right? Apart from that, I've also started a merchandise store in my college. In which I am leading as a founder and CMO right now. उसके अलावा आप कॉलेज के बाहर आए तो मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर एंड होते ही मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी which legit एक महीने के अंदर वो 7 फिगर अप्रॉक्स बना रहा था and we closed 15 plus clients, not 50 plus, 15 plus clients, but 15 clients in just 1 month, right? Also apart from that, currently I'm running an college admissions or counseling company. And just 1 month back I've started a cafe, right? So maybe this sound a little too fascinating for you, but trust me on this, ये सुनने में इतना अच्छा लगता है उतना अच्छा reality नहीं होता. सबको दूसरे का life थोड़ा अच्छा लगता है. So my life is currently financially fuck up because yeah, I have invested the hard earned money that I had in a lot of startups and I'm currently seeing them that maybe I can lose, right? Apart from that, I've also worked as a broker. I've also worked as a social media guy, handling social media pages of a lot of clients. Apart from that, I've also started a small crochet company, not company, but a small crochet startup or something like that in my college. So these are my resume. And I have not been passed from the college. अभी तक मैं college से pass on नहीं किया हूँ. Last 3 महीने बाकी है मेरे college के, right? So let me give you a brief why I started a cafe and how I started a cafe. So being in a college. So basically, when I was in my first year, I joined the clubs and committees of college as sponsorship and PR guy, right? Initially, I was in PR, but later on, I moved to sponsorship because I believed sponsorship is a domain that help you build genuine connections and that increases your sales and the persuasion abilities and skills, right? So I joined sponsorship domain there, right? And the best thing I ever did in my life was choosing this domain. So what happened next is that went to pitch the clients, right? A lot of clients rejected me. A lot of people rejected me for the sponsorship. But when I got more than 50 plus or 60 plus rejection, I got a big break and I got a good sponsor, right? So I continued this journey and I made good connections in just 1.5 years. इसके अलावा जो मेरे पहले स्टार्टअप था उसको मेरे दोस्तों ने फंड किया एंड जो मार्केटिंग एजेंसी था एंड इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ. प्लीज वॉच दैट वीडियो. मे बी विल गेट कि आपको कभी कभी लगे कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप कैसे कुछ स्टार्ट कर सकते हो. ब्रो, मैं कैसे इसको एंड कर सकते हो एज अ यूनिकॉर्न या एज अ बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी मैं तो नहीं बता पाऊंगा आपको कि 8 फिगर 10 फिगर करोड़ करोड़ कमा रहे, वो नहीं बता पाऊंगा. बट कैसे स्टार्ट कर सकते हो और मैं से बेटर कर सकता हूँ आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने ये किया है, राइट? सो उसके अलावा मैं जब मार्केटिंग एजेंसी में था तो आई मेट अ क्लाइंट ऑफ माइन एंड वो क्लाइंट जो थे मेरे अब वो मेरे कैफे में मेरे साथ है एज अ पार्टनर है, राइट? सो अब हमने कैसे कैफे स्टार्ट किया. सो उनका यहाँ पे रेस्टोरेंट चेन चलता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट चेन चलता है उनका. एंड उस रेस्टोरेंट चेन में ही प्लान आउट कि यार उत्कर्ष, let's start this cafe, right? So I went interested, but I knew that cafe is not a very profitable business. You lose a lot of money in cafe, and because I have a good PR and a community in college, right? So basically, he has seen my work in the last 1-2 years, 1.5 years. So he knew that I was a pretty hard-working guy, and I have nothing except hard work, and that's enough for me. Honestly, that's enough for me. सो अब थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं. भाई मैं थक गया इतना हिंदी इंग्लिश बोल बोल के. वैसे मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट? हमने कैफे स्टार्ट किया. सो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुम्हें जैसे कैफे इंप्लीमेंट करना है, जैसे खोलना है खोलो, बट द इशू इज दैट वी हैव दिस लोकेशन.
सो हमारा जो लीज पड़ रहा था उस एरिया का, दैट वाज क्लोज टू 20,000. एंड आई थॉट कि यार अगर हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें एंड अगर हम पैसा ज्यादा लूज हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो वी इनिशियली प्लान टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, राइट. सो हमने ऐसा प्रॉपर्टी चूज किया जिस प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें पहले से ही अवेलेबल थी हमारे पास, लाइक आपके माइक्रोवेव, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें पहले से अवेलेबल थी. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप ढूंढ सकते हो, राइट. तो वी फाउंड दैट प्रॉपर्टी, बट द ओनली इशू इज दैट दैट प्रॉपर्टी जो हमारे कॉलेज के आसपास ही है वो, बट वो बहुत ज्यादा लोग नहीं आते वहां पे. सो उसके बाद हमने प्लान किया यार कि अब 7 दिन में कैफे लॉन्च करना है. सो यार वी वर कम्प्लीटली फक्ड अप. एंड कैफे उस टाइम पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, आप देख सकते होंगे कि बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था, नॉर्मल कंडीशन में था. सो व्हाट वी डिसाइडेड इज दैट कि यार फाइनली वी हैव टू बिल्ड इट. सो आई कॉल्ड ऑल माय फ्रेंड्स, जितने मैंने कनेक्शंस बनाए थे विद इन द लास्ट 2.5 years ऑफ कॉलेज, मैंने सबको कॉल किया. एंड यू वोंट बिलीव भाई द पावर ऑफ फ्रेंडशिप. लिटरली आई कॉल्ड 100 to 150 फ्रेंड्स एंड मोर देन 100 फ्रेंड्स शोड अप. मोर देन 100 फ्रेंड्स शोड अप. एंड हम सब ने मिलके एक मतलब यूजुअली मैंने 3 डिजाइन के लोग बैठाए जो कि 3 डिजाइन में काफी अच्छे थे. इससे पहले मतलब इनिशियली स्टार्ट करूं तो पूरा रिकैप करते हैं, ठीक है. इनिशियली स्टार्ट करूं तो मैंने 2 टीम से बात किया. मैंने बोला 1 हफ्ते में लॉन्च करना है, हमारे पास बजट कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ दे भी नहीं पाऊंगा, तो कैन यू प्लीज वर्क यार. तो उन्होंने बोला कि कॉलेज के नोन थे, मेरे जूनियर्स थे या फिर मेरे सीनियर्स थे. उन्होंने बोला कि नहीं यार 7 दिन में करना पॉसिबल ही नहीं है, टाइम लिमिट हो ही नहीं पाएगा. सो आई फाइनली कॉल्ड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, 3 to 4 फ्रेंड्स, एंड आई आस्क्ड देम, एक उसमें से मेरी बंदी भी थी. आई आस्क्ड देम कि ब्रो ये है प्लान, ये इम्प्लीमेंट करना है, हमें इंटीरियर बनाना है, हम सब इंटीरियर का देखते हैं. एंड उसके अलावा किचन में मेरे को शेफ वगैरह चाहिए, मेन्यू बनाना है, मेन्यू के सामान चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट. सो कैसे करें. तो दे ओपनड अप इंटरेस्ट एंड दे केम अप विथ आइडिया ऑफ कि यार हम एक पेड़ बनाते हैं, चेरी ब्लॉसम ट्री बनाते हैं हम साइड में, सारे वॉल्स को, जो वॉल्स है एक साइड की, उसको हम पेपर से कवर करके बहुत प्यारा डेकोरेटिव बनाते हैं, जैसे कि इस टाइप का थोड़ा है ना. उसके अलावा व्हाट वी डिड इज दैट कि उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें हैंडमेड ही थी मोस्टली. तो 30,000 हमारा अप्रॉक्स क्लोज टू खर्च हो गया इन डेकोरेशन का पार्ट में, राइट. every night. Paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to give me to all I want is. अपार्ट फ्रॉम डेकोरेशन हमारे 20,000 चले गए जमीन पे, जो कि प्रॉपर्टी मंथली रेंटल है उसका. उसके अलावा 50,000 यहाँ चला गया हमारा. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा क्लोज टू इफ यू सी शेफ पे हमारा चला गया 30,000 क्लोज टू, तो 80,000 चला गया. बट बिकॉज वी आर शफलिंग शेफ फ्रॉम अदर कैफे टू दिस कैफे, मतलब जो भी मेरे पार्टनर थे उनके कैफे से, तो हमारी थोड़ा कम पड़ा. बट ऑन अ ग्राउंड आप 30,000 ले लो तो दैट इज क्लोज टू 80,000. एंड जो इनिशियल हमारी इन्वेंट्री थी दैट इज क्लोज टू 20,000, राइट. सो टोटल 1 लाख लगा. एंड इंटीरियर को 7 दिन में करना है. एंड वी वर शॉक एंड वी वर कंप्लीटली फक्ड अप ब्रो कि कैसे करेंगे हम, राइट. सो अगेन when we decided the design, I called up my friend and legit हर दिन close to 20-25 लोग आते हैं हमारे कैफे बनाने में हेल्प करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ देम हमने कैफे 5 दिन के अंदर इंटीरियर खत्म कर दिया, 5 to 6 दिन के अंदर इंटीरियर खत्म हो गया हमारा. उसके अलावा द नेक्स्ट इशू वी फेस इज दैट कि जो हमने जगह लिया था वो सस्ती क्यों पड़ी हमें बाद में पता चला. दैट वाज बिकॉज कि वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग था वो बहुत गलत था. एंड हमारे इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग 2 बार पूरा फ्यूज हो चुका है, ठीक है. सो हमने फिर बुलाया इलेक्ट्रिशियन को, सब उसने बना के ठीक किया. एंड उसने बताया कि पूरी वायरिंग ही गलत है, इसको पूरा रिवैम करना पड़ेगा. बट हमने थोड़ा सस्ता जुगाड़ लगाया एंड फाइनली स्टार्ट कर दिया, राइट. सो ऐसे हमें हो गया क्लोज टू यार 7 days लग गया. एंड हमने फिर शेफ फाइनलाइज किया. शेफ को हमने कुछ आइटम बताए जो कि बहुत फेमस थे. जैसे फॉर एग्जांपल देहरादून में अगर पढ़ते हो तो मेरे आस मतलब मैंने देहरादून में देखे कोथे मोमोज, दैट इज पैन फ्राइड मोमोज, काफी फेमस है. अपार्ट फ्रॉम दैट झोल मोमो इज अ ग्रेवी टाइप ऑफ मोमोज जो कि बहुत फेमस है. सो दीज टाइप ऑफ डिशेज दैट कॉलेज के स्टूडेंट और कॉलेज का क्राउड ऑफ देहरादून वेरी लाइक, हमने वो इम्प्लीमेंट किया, वो रखा. बट द इशू इज नॉट हाउ वी स्टार्टेड द कैफे इन 7 days. द इशू इज दैट I never knew, trust me on this, I never knew cafe business could be this hard, right. Suddenly my partner उनके घर पे शादी start हो गया and I knew nothing about inventory management, I knew nothing about food, I knew nothing about handling cafe. and ये जो 7 दिन upcoming आने वाला है कि how I managed a cafe, आगे का 7 दिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत fucked up था bro, like बहुत ज्यादा मेरे लिए hard था. एंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हमने देखा, ट्रस्ट में ऑन दिस, बहुत स्ट्रगल्स देखा. लाइक एक दिन क्या हुआ, शेफ क्योंकि 2 थे हमारे पास, बट स्टार्टिंग डेज में हमने इतनी मार्केटिंग कर दी थी कि बहुत ज्यादा क्राउड आ गया था, राइट. एंड हमारे 3 से 4 दिन के अंदर सारी इन्वेंट्री खत्म हो गई थी बिकॉज वी लॉन्च एन ऑफर 50% ऑफ
ठीक है, फॉर फर्स्ट डे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम आए जो कि जिनको हम सर्व भी नहीं कर पाए बिकॉज वी वर कम्प्लीटली फुल, राइट। उसके अलावा द सेकंड इशू इज दैट कि यार सेकंड डे क्या हुआ कि हमारे पास, आई डोंट नो क्या उसको बोलते हैं, बट एक चीज थी जिसमें आपके तंदूर के आइटम्स बनते हैं, राइट। तो तंदूर के आइटम्स में बनते हैं, एंड वो हमारे पास बहुत बैड क्वालिटी का था, मतलब तंदूर के जो आइटम इसमें बनाते हैं, ठीक है, सेकते हैं, तो उस वो जब जलता था तो धुआं पूरा हो जाता था। तो अगले दिन जब तंदूर के आइटम्स हमने लॉन्च किए, तो यार लेजिट कैफे में पूरा धुआं धुआं हो गया and सारे लोगों को छत पे टेरेस पे डाइन करना पड़ा। सो वहां पे एक्सपीरियंस खराब हो गया देन हमारा। देन उसके अलावा आप देखो तो शेफ जो हमारा खाना बनाने का टाइम था, दैट वाज इनिशियली, अभी तो फिलहाल चल ही रहा है, इनिशियल टाइम ही है, दैट वाज क्लोज टू 45 टू 50 मिनट्स हमें लग रहा था एक खाने को बनाने में। डिलीवरी फूड आइटम का जो टाइम था दैट वाज क्लोज टू 1 आवर 25 मिनट समथिंग लाइक दैट। एंड भाई ये सब मेरे को पता है कि एज अ ब्लेंडर है चीजों में, बट क्योंकि हमने, हमारा जो यूएसपी था दैट वाज कि हम फ्लावर शॉप भी रखेंगे, तो हमने इनिशियली फ्लावर शॉप रख दिया था क्योंकि हमारे कॉलेज के आसपास फ्लावर शॉप था नहीं, एंड यहाँ पे फ्लावर बहुत महंगे में बिकता है। सो इट सर्व्ड एज अ वेरी गुड मार्केटिंग स्टंट, बहुत लोग आए, बट यार वी weren't रेडी। बट क्योंकि रोज डे था, हमने रोज डे के टाइम लॉन्च किया था, रोज डे था, तो वी हैव टू स्टार्ट आवर कैफे एट दैट टाइम, राइट। सो वी weren't ready but we started the cafe. So few of the life lesson that I've learned इस कैफे के थ्रू इज लाइफ चेंजिंग, एंड आई एश्योर दैट कि मैं आपको इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा एक डिटेल में। एंड लाइक I never knew yaar cafe handling could be so hectic, and trust me on this guys, like if you are working on a franchisee model is good, it's good, honestly it's good, but if you are working on a normal cafe the profit margins are also very low, like मेरे एक बहुत ब्रिलियंट एडवाइस मेरे उन्होंने दिया था, मेरे साथ जो पार्टनर है, कि यार कैफे में प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत डीप डाउन जाना इज थोड़ा हार्ड, राइट, क्योंकि वो बिल्कुल देसी बिजनेसमैन है। सो व्हाट ही फॉलोज इज दैट कि अगर तुम्हारे कैफे में हर टाइम क्राउड है, भीड़ है, तुम्हारा सामान आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो यू आर प्रॉफिटेबल, राइट। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट या आई एम सीइंग दिस हैपनिंग बेसिकली। उसके अलावा द सेकंड थिंग जो और सबसे बड़ा ब्लेंडर था इज दैट कि हमारे मेन्यू में कुछ क्लोज टू स्टार्टिंग में 50-60 आइटम्स थे, राइट, खाने के, एंड 20 ड्रिंक्स थे। एंड ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था, हमें हमें छोटा करने पड़ेगा मेन्यू, आगे इन नियर बाय फ्यूचर विल लाइक छोटा कर देंगे मेन्यू। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इनिशियली हमारे सारे आइटम्स अवेलेबल नहीं थे हमारे पास, रॉ मटेरियल, क्योंकि वो गए हुए थे, एंड ये सब चीजें उनको डील करनी थी। तो बहुत लोग का ऑर्डर कैंसिल हुआ, बहुत इश्यूज हुआ, बट या वी आर मैनेजिंग इट यार, एंड बिजनेस का पार्ट है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो तुम्हें बहुत सारे लोग बताते हैं ना कि बिजनेस करना बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिजनेस करना ईजी नहीं है। ईजी लेके चलो, बट बी रेडी फॉर द हार्श रियलिटी, फॉर द हार्श इशू दैट यू विल फेस आगे। बी रेडी फॉर इट यार, बिजनेस करना इज नॉट ईजी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स वेरी हेक्टिक। एंड उसके साथ साथ दूसरा इशू क्या था कि मैं काउंसलिंग कंपनी भी संभाल रहा था। सो मैं यहाँ पे वेटर भी बन गया अपने कैफे में, मैं डिलीवरी बॉय भी बन गया अपने कैफे में, मैं काउंसलिंग कंपनी भी चला रहा हूँ, मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी डाल रहा हूँ, मैं उसके अलावा आपके ऑर्डर भी ले रहा हूँ। सो यार बेसिकली यू नेवर नो कैफे कितना हेक्टिक हो सकता है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, काफी हेक्टिक है, राइट। सो हैट्स ऑफ टू पीपल भाई जो अपने कैफे खोले या काफी अच्छे चला रहे हो। बट या आई एम लर्निंग यार, करंटली अभी तो कॉलेज पास नहीं हुआ, एंड आई एम लर्निंग, सो दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन एवर, दिस इज द बेस्ट लाइफ आई कैन एवर इमेजिन, राइट। सो बस यार आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, और कैफे हमने 7 दिन में कैसे स्टार्ट किया, अगर आपको पूरी वीडियोस का डे बाय डे व्लॉग चाहिए तो प्लीज कमेंट करो व्लॉग, एंड वील प्रोवाइड इट फॉर यू। एंड हम एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको सुन के जानी चाहिए, दैट इज कि वी आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ 1000+ पीपल, ठीक है, जिसमें जो भी स्टार्टअप फाउंडर है, जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी बहुत एम्बिशियस लोग हैं, उनके कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मैं। क्योंकि व्हेन यू टॉक टू दीज पीपल एंड अपने आसपास तुम इन लोगों को रखते हो ना, तो लाइक योर ग्रोथ मल्टीप्लाइज। And I've told you initially, everything that I have is through connections, right? So I'm forming a community. If you're interested in being a part of that community, follow me on Instagram and message karo meko, right? I am dropping the Instagram ka ID. And just thank you so much guys for listening to the video entirely, and love you so much.